Hello students, I am Prasanna, your SST teacher. Previous class we have studied about the universal advantages. Today we are starting the next topic, elections. Elections are the very foundation of democracy. So that is very important a democracy के अंदर election. So then a voting right. That is very important in democracy. Then in the election, this secrecy is observed to enable the voters to cast their votes according to their will and choice. So what is election? Election क्या है? तो हमारा will and हमारा इच्छा के according to हम लोग की हमारे representatives की हमारा पार्टी की हम लोग की choice कर सकते हैं, choose कर सकते हैं. ये this elections. Now these elections may be direct or indirect. So that is the election direct भी है, directly हम लोग representatives की elect करते हैं, then indirectly. Then what is directly election क्या? These elections people take part directly are called direct elections. Peoples वगैरह वोटिंग करके ये representative की directly select करते हैं ना, ये that election is known as direct elections. But in the election in which only the elected candidate of the people take part are called indirect elections. So otherwise हम लोग एक कैंडिडेट की हम लोग चूज करके वो कैंडिडेट इलेक्शन वोटिंग करके रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्ट करते हैं ना, वो इलेक्शन के क्या बोलते हैं, से इनडायरेक्ट इलेक्शंस. Understood, sir? Then two types of elections, direct and indirect elections. People directly this vote and they select their representative. That election is known as direct elections. Otherwise, the this representative they elected their candidates. That is known as the indirect elections. Understood what is election and what is the two ways of election, direct and indirect elections. Okay. So next, candidates. Then देखिए candidates, the success of democracy. Candidates for the success of democracy. The success of democracy depends on many factors. Some of which are हमारा democracy सक्सेस करने के लिए so many factors है. क्या क्या factors आप देखना है. So first, understanding the importance of voting. So हम लोग first important point क्या है, then the importance of voting. हमारा voting का importance, that is the main important factor of democracy. Understand? So next, voting for the right sort of candidate. Voting for the right sort of candidate. हम लोग का इसे कुछ भी देखना मत, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन और क्वालिटी एंड द पार्टी का क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी वो देके हम लोग वोटिंग करना है. दैट इज द राइट टाइप्स ऑफ द वोट. सर हमारा किसकी वोटिंग करना है, हमारा ऐसे कुछ भी देखना मत, ये वेल्थ ये ज्यादा मैन मसल पावर है, ऐसे कुछ भी देखना मत. वो हमारा ये कैंडिडेट की क्वालिटी उसकी कैपेबिलिटी वो देके, वो पार्टी का क्वालिटी कैपेबिलिटी वो देके हम लोग वोटिंग करना है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ राइट टू वोट. अच्छी तरह हमारा वोटिंग प्रॉपर वे से हम लोग हमारा राइट यूज करना है. तो ये थ्री इम्पोर्टेंट वे से दैट इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है ना. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? थ्री इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग and voting for the right sorts of candidate, proper use of right to vote. So next, for whom should we vote? For whom should we vote? So this now the question of arrays. So अभी आप लोग की तना हमारा घर वाला के भी आप देख कीजिए. So this type of questions आ जाते हैं. So then क्या है? So whom
for whom should we vote, किसकी हम लोग वोटिंग करते हैं. Now question arises, whom should we vote for? Then देखिए, we should vote for candidate after carefully assessing the merits and demerits of all contesting candidate. हम लोग अच्छी तरह से इसकी वेरीफाई करके उसकी कैंडिडेट्स की मेरिट्स क्या है, उसकी अच्छा क्वालिटी क्या है, डीमेरिट्स क्या है, वो कैलकुलेट कंसिडरिंग करके हम लोग कैंडिडेट की वोटिंग करना है. चूजिंग ए कैंडिडेट एक्चुअली ए ट्रायल ऑफ वोटर्स ओन विजडम. हमारा चूज एक कैंडिडेट की चूज करने के टाइम हम सो मेनी टाइम्स हम लोग इसके बारे में सोच के वोटिंग करना है. दैट इज देन पैट्रियटिज्म एंड फीलिंग ऑफ सेल्फलेस. हमारे सम रिलेटिव्स ऐसे वगैरह कैंडिडेट्स हो, हम ऐसे कुछ भी हम लोग देखना मत. हमारा पैट्रियटिज्म और हमारा विजडम यूज करके कैंडिडेट्स की सेलेक्ट करना है. बट इस पैट्रियटिज्म देशभक्ति, उसकी हमारे राज्य की क्या, किसकी कैसे कैंडिडेट की हम लोग की नीड है, कौन सी पार्टी की हम लोग की नीड है, उसकी अकॉर्डिंग टू हम लोग वोटिंग करना है. देन अंडरस्टूड. नेक्स्ट आप देख लीजिए, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन he should vote for the candidates who has the following merits. ये हम लोग की एक कैंडिडेट्स की हम लोग सेलेक्ट करने के टाइम देन वो कैंडिडेट्स क्या क्या मेरिट्स है हम लोग वेरीफाई करना है. सर देखिए, उसकी ऑनेस्ट है एंड ही इज एफिशिएंट है. देन ही इज ऑनेस्ट है, एफिशिएंट है, तो हम लोग की वोटिंग कर सकते हैं. देन ही इज इन फेवर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी. हमारा नेशन की अखंडता और दिस वेलफेयर सबकी उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं. देन उसके लिए काम करते हैं, वो वगैरह पार्टी की और कैंडिडेट की हम लोग की वोटिंग कर सकते हैं. देन ही इज अबाउट द कम्युनल और कास्ट कंसिडरेशंस. ये हमारा कम्युनिटी का है, नहीं तो कास्ट है. सेम अभी आप देखिए, दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ एंड डेज दिस गोइंग ऑन. सेम कम्युनिटी की पर्सन की, अदरवाइज द कास्ट पर्सन की हम लोग वोटिंग करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शर्मा है तो शर्मा कैंडिडेट है, उसकी वोटिंग करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देखे नहीं है, वो गलत है. देन हम लोग ऐसे वगैरह कम्युनिटी की और कास्ट की एबो होना चाहिए. अंडरस्टूड. सर व्हाट इज दिस कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं. इज अ ऑनेस्ट एंड ए विजन and he is a favor of the national integrity and he is above the communal and the caste consideration. Sir, understood? Sir, next, what is the vote क्या है. So what is the sacred trust है वो that in the hands of the people. ये वोट हमारा एक राज्य की भविष्य है. देन हम ये दैट वो भविष्य किसकी हैंड में है, वो पीपल की हैंड में है. दैट वो भविष्य वो चीज हम लोग मिसयूज मत करना. दैट इज सही वे से ट्रूथफुली मैनर से हम लोग वोटिंग करना है ना. दिस अंडरस्टूड. द वोट शुड बी एक्सरसाइज द राइट टू वोट विद द इंटेलिजेंस and sometimes scrupulous the parties and the candidates after money and other the temptation in order to collect votes in their favor. Some अब ये देखिए, some पार्टीज वगैरह, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वोटिंग करने के टाइम, इलेक्शन के टाइम आपका घर पे आके में वो करते हैं, ये करते हैं, इसे वगैरह दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग वगैरह वो लोग करते हैं. दैट इज नॉट गुड. सर वो लोग की समटाइम वो लोग पैसा भी देते हैं, एंड समटाइम मैन एंड मसल्स पावर भी वो दिखाते हैं. वो वगैरह चीज में हम लोग इंटरफियर करना मत. हमारा वोट अच्छी तरह ट्रूथफुली मैनर से हम लोग करना है. सर अंडरस्टूड. सर देन नेक्स्ट, अभी भी आप लोग बच्चे बेटा, आप लोग के फ्यूचर की फ्यूचर के लिए आइकॉन ऑफ आवर कंट्री जैसा हमारा अभी का स्टूडेंट है. इसलिए आप वेरीफाई करना है आपका पेरेंट्स वगैरह किसकी वोटिंग करते हैं, ये सब कुछ आप नोटिस करना है. उसकी वेरीफाई करके समटाइम पेरेंट्स की समझाना है, वो आपका ड्यूटी है. ओके.
ये पढ़ने की मतलब ये इसी तरह ये पढ़ाई वगैरह, ये पॉलिटिक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सिविल्स वगैरह, उसकी हम लोग अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ना है. ओके. Then what is caste system? There's the vote under the influence of caste, religion and region is any other the extraneous factors is not undermine the very foundations of democracy. ये वगैरह वोटिंग करते हैं ना समटाइम, ये कास्ट की, रिलीजन की और रीजन की अकॉर्डिंग टू वोटिंग करते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन नहीं है ना. This casteism, regionism, lack of the interest in political life and lack of proper education are the great enemies of the democracy. अब enemies, democracy का enemies क्या क्या है आप देख लीजिए. democracy का enemies, then casteism है, then caste के अकॉर्डिंग टू वोटिंग करते हैं ना, casteism, regionalism, एक रीजन की, एक जगह की अकॉर्डिंग टू हम लोग वोटिंग करते हैं. हमारे पड़ोसी वगैरह तो हमारे आसपास के लोग कैंडिडेट्स है उसकी वोटिंग करते हैं, ऐसे वगैरह सिस्टम हम लोग करते हैं ना. ये देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमी क्या है? दिस लैक ऑफ एजुकेशन. हम लोग की पढ़ाई वगैरह, दिस एजुकेशन नहीं है तो हम वो लोग क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग करते हैं. दैट इज मैन पावर, मसल पावर के अंदर हम लोग इंटरफियर करके उसकी वोटिंग करते हैं. दैट इज नॉट गुड सर. दैट इज the people should have the faith in this system. इसलिए हम लोग ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेथ होना चाहिए. this understood this. next ये ऐसे वगैरह लोग की जैसे कैपेबल नहीं है, ऐसे वगैरह लोग की हम लोग सेलेक्ट कर लिए तो ये लोग बिकम द करप्ट क्यों करते हैं, जिस गलत काम करते हैं जिस हमारा कंट्री में. इसलिए हम लोग केयरफुली उसकी सेलेक्ट करना है. सर ओके. नेक्स्ट दिस आप देख लीजिए. द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लास्ट, अभी भी देख लीजिए कितने साल हो गया हम लोग की फ्रीडम मिलने के बाद में. देन अभी भी दिस मोस्ट ऑफ द पीपल से वोटिंग सिस्टम अच्छी तरह यूज करते नहीं है. उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. ऐसे वो इलेक्शन टाइम ऐसे काम कर लिया, बस ऐसे मेथड से वो लोग मैनर से करते हैं. दैट इज नॉट गुड. हम लोग वेरीफाई करके कैलकुलेट करके किसकी वोटिंग करना है, अच्छी तरह पढ़ने के बाद में हम लोग ये हमारा राइट यूज करना है. दिस अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट दिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. The representative democracy, the first point, role of parties, political parties. Representative democracy इसकी कौन क्या है सर? Political parties. That is role of political parties की role क्या है? ये democracy in which people elect representative to work on their behalf is called representative democracy. So एक देश ये डेमोक्रेसी इन विच पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव की हम लोग रिप्रेजेंटेटिव की इलेक्ट करते हैं ना, ये वर्किंग करते हैं जिस बिहार ये वर्किंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो इन्हें हमारे कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. हम लोग कैंडिडेट्स के इलेक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट करने के कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज हमारा कंट्री रूलिंग करते हैं. मेजोरिटी पार्टी हमारा कंट्री रूलिंग करते हैं. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस. ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वगैरह हम लोग क्या करते हैं, दिस पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज देन एक कैंडिडेट की पुट अप करते हैं दिस फॉर इलेक्शन में. दिस पार्टीज एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम्स वगैरह. देन वो लोग मीटिंग वगैरह करा के वो इसके अपने एक्सप्लेन करते हैं दिस पॉलिटिकल पार्टी का वैल्यूज वगैरह. दिस दे प्ले एन vital role in the elections. They form a link between the people and the government. ये representative democracy क्या है? That is the link between people and government का link क्या है? That is the representative of the representative democracies. ये representative democracy अंडरस्टैंडिंग करते हैं people की, ये गवर्नमेंट क्या करते हैं इसे वगैरह ओपिनियंस इसकी मैटर वगैरह डिस्कसिंग करते हैं. Then government or they support it. Next point, these parties form the government. Parties form the government. So for what is parties form the government? Okay? So parties form the government. Sorry, this. So parties form the government.
दैट इज मेजोरिटी इन इलेक्शन में मेजोरिटी पार्टी क्या करते हैं, मेजोरिटी पार्टी रूलिंग करते हैं, हमारा कंट्री रूलिंग करते हैं मेजोरिटी पार्टी। देन पार्टी विन, एक इलेक्शन में एक कोई सी पार्टी विन करते हैं ना, दैट इज मेजोरिटी पार्टी रूलिंग करते हैं। दे सेट इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दे सीट्स इन द लेजिस्लेटिव इन एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, that is this party is the government. Then next, the coalition government. So parties form the government. Which party form the government? The majority party form the government. So next most important point, the coalition government. So what is coalition government? Sometimes when there is no single political party in the majority. अब एक इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टीज की मेजोरिटी मिलते नहीं है, तो एक पार्टी की मेजोरिटी पूरा मिलते नहीं है, तो क्या है, से वन ऑफ पार्टीज ज्वाइन करके रूलिंग करते हैं, एक गवर्नमेंट से फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस कोएलिशन। ऐसे वगैरह गवर्नमेंट की हम लोग क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी आप लोग देख लीजिए, सो मेनी टाइम्स दिस Congress also not get the this majority, or time so many parties including करके coalition government है। This time this BJP also some parties अलग पार्टी अदर पार्टीज की भी coalition including करके गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, दैट गवर्नमेंट की हम लोग क्या बोलते हैं, coalition government। अंडरस्टूड व्हाट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। आप बड़ा क्लास में जाने के टाइम ये वर्ड यूज करते हैं, जिस कोएलिशन गवर्नमेंट। अंडरस्टूड, तो एक पार्टी की मेजोरिटी मिलते नहीं है, तो 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सच गवर्नमेंट की हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कोएलिशन पार्टीज, कोएलिशन पार्टी, कोएलिशन गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। दिस एग्जाम्पल आप देखिए, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, देन दिस एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये वगैरह कोएलिशन गवर्नमेंट है। सो नेक्स्ट दिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वर्क लाइक ए पेयर ऑफ सीजर्स। ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, कैसे वर्किंग करते हैं, सीजर। सीजर क्या है, दोनों साइड है ना, आप देखिए सीजर की पिक्चर देखिए आप, ये दोनों साइड है, दोनों साइड आप देखिए, एक में पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर, सेकंड में पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑपोजिशन, है ना, ये दोनों, तो ये सीजर में दोनों पार्टी इसके अकॉर्डिंग टू हमारा गवर्नमेंट वर्क करते हैं, ये पेयर्स की, सीजर्स की पेयर्स की अकॉर्डिंग टू। अब देन एक साइड में क्या है, क्यों ऐसे बोलते हैं, एक साइड में रूलिंग पार्टी, नेक्स्ट साइड में क्या है, ऑपोजिशन पार्टी। देन द मेजोरिटी रूल डज नॉट मीन द रूथलेसली सप्रेसिंग द व्यू ऑफ द माइनॉरिटी। तो व्हाट इज द मेजोरिटी मीनिंग, क्या है, माइनॉरिटी की सप्रेस मत करना, इसकी ज्यादा हरासमेंट मत करना, ये दिस मेजोरिटी ऐसे मत करना, बट ये लोगों की भी इंक्लूडिंग करके रूलिंग करना है, ये दैट रूल सप्रेसिंग द व्यू ऑफ माइनॉरिटी का ओपिनियन भी हम लोग देखना है, ये माइनॉरिटी का ओपिनियन देके हम लोग गवर्नमेंट रनिंग करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मेजोरिटी मिलती है तो पूरा मेजोरिटी का रूलिंग में करते नहीं, व्यूज में रूलिंग करते नहीं है, किसकी भी व्यूज हम लोग ये लोग मानना है, देन दिस माइनॉरिटी पीपल का, माइनॉरिटी पार्टी का। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट, द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। तो ये आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में आप लोग देखते हैं, डिबेट एंड डिस्कसिंग करते हैं, इसके बाद में ऑपोजिशन पार्टी भी एक साइड बैठते, रूलिंग पार्टी भी, ये दोनों डिस्कस करते काम वगैरह, एक डिसीजन वगैरह करके एक चीज वगैरह हम लोग लेते हैं, गवर्नमेंट लेते हैं। देन दे एक्चुअली द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ गुड एज अ लीडर ऑफ द पार्टीज इन पावर। तो ये ऑपोजिशन पार्टी का पार्टी ये एकदम इम्पोर्टेंट, क्यों, एक गवर्नमेंट की इन्हें गलत कर लिए तो कौन किसकी
कंप्लेंट बोल सकते हैं, एगेंस्ट बोल सकते हैं जिस अपोजिशन पार्टी। इसलिए दोनों चाहिए एक गवर्नमेंट रनिंग करने की, अच्छा गवर्नमेंट रनिंग करने की। अपोजिशन पार्टी की भी एकदम इम्पोर्टेंट पोजीशन है अपोजिशन पार्टी की। इज अ गुड लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी इज इन पावर। Then the main aim of democracy is due to the greatest good to greatest number. So main aim of democracy is to do the greatest good to the greatest number. So एक main aim है democracy का क्या है, अच्छी तरह अच्छा काम करना है। Then both the party in power and parties opposition work for the welfare of the people and the country. Then both the party in power and power में ruling party क्या है and this opposition party दोनों this work together the welfare of the people and the country. Understood? ये दोनों opposition party and the ruling party दोनों मिलके काम करना है। से किसके लिए काम करना है? This welfare of the people and the country. So understood? This next, therefore it is said that the representative government works like a pair of scissors with its two blades all in power, one in power. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? It is said that the representative democracy, representative government work like a pair of scissors with two blades. ये two blade है, उसकी एक blade क्या है? Opposition party है, next blade क्या है? This ruling party है। ये दोनों मिलके काम करना है। किसके लिए काम करना है? This welfare of the people and the country. So okay, in one in power, एक पावर से वो काम करना है। दिस पिक्चर वेरी important. Then next, and in opposition both must in cooperation with each other to make a democracy success. ये दोनों मिलके काम कर लिए तो अच्छी तरह से दोनों मिलके अंडरस्टैंडिंग करके काम कर लिए तो that is the important one to success of democracy. So okay, today this much. Understood this part. अच्छी तरह से आप रीड करना है। रीड दिस चैप्टर वेरी वेल। एनी डाउट है प्लीज कॉल मी। ओके, आई विल गिव होमवर्क थ्रू द व्हाट्सएप। ओके, बाय स्टूडेंट्स।